So as we move on to the next session, I'll be inviting Lieutenant General Dr. Rajesh Pantji, who is a renowned cybersecurity expert and former National Cybersecurity Coordinator under the PMO, who helped India rise to the 10th place in the UN Global Cybersecurity Index. He's an IIT Kharagpur alumnus with a PhD in Information Security. He has a distinguished 41-year Army career and has been honored multiple times by the President of India. He has represented India at major global forums and now chairs the Cybersecurity Association of India and India Future Foundation. He will speak on strengthening India's cybersecurity ecosystem through public-private partnership. Ladies and gentlemen, we'll have a big round of applause as we welcome Lieutenant General Dr. Rajesh Pant. Good morning, ladies and gentlemen. At the outset, let me thank Jito and the Indian Police Foundation for giving me this privilege. Special thanks to Shri Dharam Jain and Shri O.P. Singh. Last couple of years, I've had a close association with the police, having spent 5 years in the National Security Council Secretariat under Shri Doval, and we were rubbing shoulders with Naveen Kumar Singh and all the other officers that are there in the NSCS. Let me take off from where Shri Naveen has left, so that there is some continuity in the thought as far as the listeners are concerned. He mentioned, firstly, it is an excellent base that he has made for today's discussion. He's oriented us towards all the facets of cybersecurity. He mentioned the Digital Personal Data Protection Act. Most of you would be aware that on 12th of August last year, the President has given consent to this act, and the rules will be coming out very soon. There will be a time period of 18 months to 24 months for it to be implemented by the industry. But the fine that he mentioned goes up to 250 crores for the industry if adequate cybersecurity measures have not been taken. Now, what are those adequate cybersecurity measures is something that the industry has to understand. Do you have a Chief Information Security Officer? Do you have a Data Protection Officer? What are the processes that you have put? What is the technology that you are using? What is the framework that you are using? So there is a lot in this subject to understand for the industry, for it to ensure that adequate cyber security measures have been made. So I thought I'll just leave this point. The second aspect of the ransom as a service, I'll give you an example. This happened about 2 years back. There's an insurance company. Its value is $10 billion. This is a real life case, right? It came under a ransomware attack. His main server and his disaster recovery site, both were encrypted. Because if anything is online, connected online, so they reached there. They encrypted everything. All their policies, all their documents, all their bills, they had nothing. From 10 billion, they came down to $0, the value of that company. So that is the impact, the financial impact that now the board has to understand in terms of risk management. कि क्या हम ये risk ले सकते हैं कि नहीं, अगर नहीं लेना है तो हमने क्या-क्या security measures इसके लिए करने हैं. So ransom as a service today, पहले क्या होता था कि only some technical people that he mentioned could carry out these attacks. Today, crime as a service has started. That means there's one person who's an expert in how to infiltrate into a system. There's one person who's an expert in the encryption part. There's one person who knows how to come out. There's one person who's an expert in the Bitcoin, how to make the money, where it goes. और हम लोगों ने 2-3 तो मैंने ही किए हैं इसमें negotiations. You suddenly find there's a negotiator that pops up. So he says, अच्छा ठीक है, 1.5 Bitcoin नहीं देने हैं तो आप 1 Bitcoin कर दिए. You don't know whose side, मतलब ये आपकी तरफ है कि उधर है कि बीच में है. So ये proper enterprise हो गया है. तो पहले जहाँ एक technically competent criminal ये करता था, now the criminal gangs all around the world, there could be in USA also, Russia also, Eastern Europe also, सब मिलके इन्होंने एक गैंग बना दिया है और ये क्राइम एज ए सर्विस कर रहे हैं. अब कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हमें आप 20% दे दीजिए, बाकी आप ले लेना.
And they also know how much ransom to take from each company because उसने cyber insurance जो ले रखी है वो भी उसको hack करके पता लगा रखा है. So he says from this company you can take $100 million, from this company $50 million. So this is a very serious issue, right? Ransom as a service. Then last he spoke of resilience. That is very important. देखिए cyber space के there are 3 hard truths of cyberspace. Number 1 is that as long as we depend on software, because everything is software, as long as we depend on software, there will be vulnerabilities. कहीं ना कहीं आप उसमें flaw होगा software में जहाँ से आप अंदर जा सकते. As long as there are vulnerabilities, cyber attacks will take place. And the third hard truth is that the attribution of these cyber attacks, कि किसने किया, will be as difficult as what it is today. So, if you come to our National Informatics Center, यहाँ शास्त्री पार्क में इतना बड़ा डिजिटल बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है, उसमें पूरा वर्ल्ड का मैप है. वो दिखाता है apparently कि कहाँ से इंडिया में अटैक्स आ रहे हैं. And in that map you find 40% of the attacks are coming from USA, mainland US, 40%. But that is not the truth. The truth is कि USA में उसने एक सर्वर हायर किया हुआ है, VPS बोलते हैं उसको, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर. उसके पीछे वो जर्मनी में उसने दूसरा सर्वर हायर किया है, उसके पीछे नेदरलैंड्स में हायर किया है, और लास्ट में वो जहाँ बैठा है वो तो इंडिया के आसपास ही है एक्चुअली फिजिकली. एंड इफ़ यू आस्क नाउ, इफ़ आई आस्क द US, अमेजोन से मैं पूछता हूँ कि हु हैज़ पेड फॉर दिस सर्वर, वो कभी बताते नहीं, कहते प्राइवेसी लॉज हैं. उन्होंने अपने जो बॉस्टन में एक इनकी बॉस्टन मैराथन में एक केस हुआ था बॉम्बिंग का, उसमें एक मोबाइल फ़ोन मिला था. तो पीपल वांटेड टू नो कि इसमें मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या है. वो माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं बताया, कहते हैं नहीं ये तो प्राइवेसी लॉज में आते हैं, हम बता ही नहीं सकते आपको. फाइनली दे टुक द हेल्प ऑफ इजरायलीज, यू नो, दे ब्रोक द मोबाइल फोन एंड गिव द डेटा. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि एट्रीब्यूशन एज टू हु हैज़ कैरिड आउट द अटैक इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. तो अगर ये हार्ड ट्रूथ्स होने हैं, सो द ओनली आंसर लाइज इन रेजिलियंस. And resilience comes from 4 alphabets, PPTC: people, process, technology and cooperation. People means आपके 2 टाइप के people हैं. एक तो हम लोग हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, और दूसरे जो साइबर स्किल्ड पीपल हैं जो आपको साइबर सिक्योरिटी दे रहे हैं, उनकी अपस्किलिंग, उनकी ट्रेनिंग. और जो नॉर्मल लोग हैं उनकी एजुकेशन एंड अवेयरनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. दिस इज हाउ टू प्रिवेंट साइबर अटैक्स. यू शुड नॉट ऑलवेज रिएक्ट कि अटैक हो गया, पहले प्रिवेंशन करना है उसका. प्रोसेसेस में आता है, आपने SOPs बनाई है कि नहीं, आपके पास साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान है कि नहीं, आपने केपेबिलिटी मॉडल किया है कि नहीं, ऑडिट कर रहे हैं कि नहीं, VAPT कर रहे हैं कि नहीं. तो ये सारे जो आपके प्रोसेसेस हैं, आर दे इन प्लेस और नॉट. टेक्नोलॉजी में तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच मनी यू हैव. इट स्टार्ट्स फ्रॉम एंड पॉइंट सिक्योरिटी. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर. ट्रस्ट नो वन, वेरीफाई एवरीथिंग. एंड पॉइंट सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, आपकी क्लाउड सिक्योरिटी, ये सारे इसमें टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं. देयर इज every day, you know, things are changing with what you mentioned, AI and all that. And finally is the cooperation. This is very important. साइबर सिक्योरिटी में अगर आप एक फायरवॉल लीजिए, इट इज़ एक डब्बा है फायरवॉल, कुछ नहीं है उसमें. आपको उसमें बताना पड़ता है कि क्या ब्लॉक करना है और क्या अलाउ करना है. एंड क्या ब्लॉक करना है यू गेट फ्रॉम द थ्रेट इंटेलिजेंस, जो कि कोई सर्ट से आपको आ रहा है या कोई अलग कंपनीज हैं वो आपको बता रही हैं. सो ओनली व्हेन यू गेट द थ्रेट इंटेलिजेंस यू टेल दैट बॉक्स ब्लॉक दिस. And this is continuous. There are 4 lakh malwares created every quarter. 4 lakh malware. So continuous threat intelligence आना बहुत ज़रूरी है. उसके लिए cooperation. It's a very important part of ensuring resilience. PPTC ये अगर आप लोग याद रख लें तो I think मेरा justify हो जाएगा ये talk. So you mentioned artificial intelligence, machine language. आजकल हम लोग जो हैं 6th generation of cyber attacks में हैं. It is like 6G जैसे मोबाइल में है. तो फर्स्ट जनरेशन वो जब खाली कंप्यूटर आया था तो हमें कंप्यूटर बचाना था तो वी पुट एंटीवायरस, कंप्यूटर में एंटीवायरस डाल दो. देन द कंप्यूटर्स गॉट कनेक्टेड, सो वी पुट अ फायरवॉल कि ठीक है वहाँ से. देन द एप्लीकेशन स्टार्टेड, सो वी पुट इंट्रूजन. सो लाइक दैट फर्स्ट जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिर मोबाइल फ़ोन आ गए, फिर IoT डिवाइसेस कनेक्ट हो गई, 5th जनरेशन. Now today's 6th generation is use of AI. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे यूज़ हो रही है कि वो जो अटैकर आ रहा है वो आपके सेंस कर रहा है, अच्छा क्या क्या इसने डिफेंसेस लगा रखी हैं, और उसके हिसाब से ही इज़ चेंजिंग हिमसेल्फ इन रियल टाइम. ही इज़ चेंजिंग द मेलवेयर so that it appears benefic and it passes through in that what I mentioned firewall. So 6th generation of cyber attacks are taking place today, very, very difficult to stop using all these artificial intelligence, this thing. Now let me come to
दिस एक्सट्रीमली वेल क्यूरेटेड इवेंट जो आपने ऑर्गेनाइज किया है. एंड व्हेन आई से वेल क्यूरेटेड मीन्स आपने पहले एक बेस बनाया है ताकि लोग साइबर सिक्योरिटी समझ लें. उसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड साइबर स्पेस, there are 5 domains around us: land, air, sea, space and cyber. सी और स्पेस में पता नहीं कितने गए हैं नहीं गए हैं, बट एवरी डे जब आप वो मोबाइल फ़ोन अपनी पॉकेट से निकालते हैं, यू आर एंटरिंग साइबर स्पेस, ऑल ऑफ अस. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि द एवरेज टाइम एन इंडियन स्पेंड्स इन साइबर स्पेस इज 6 hours एवरी डे. 6 घंटे, दैट इज द एवरेज टाइम. सो इसमें चलिए प्रोटेक्शन तो अलग बात है, अभी तो हम बात करेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बोला है that cyber crime is the biggest man-made risk to the economic progress of nations. And they say that the cost of cyber crime is $10 trillion. हमारी देश की इकॉनमी करीब 3.7 ट्रिलियन है. So it is the third largest state actually in the world. USA, चाइना और तीसरा साइबर क्राइम. $10 trillion का लॉस हो रहा है. और मतलब देयर आर कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया जिनके ऊपर आपने सैंक्शंस लगा दिए हैं, एंड दे हैव गॉट 10 billion फ्रॉम साइबर क्राइम. तो पब्लिक डोमेन की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी तो बोल नहीं सकता हूँ. बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, राइट? सो क्यों हो रहे हैं इतने साइबर क्राइम, क्यों हो रहे हैं, ये भी समझना ज़रूरी है. सो दैट इज़ माई स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द टॉक टुडे कि फर्स्ट पॉइंट इज जियो पॉलिटिक्स. इट्स अ वेरी टर्बुलेंट ईयर. आप लोग रोज़ पेपर पढ़ते हैं, प्रेजिडेंट इन USA सुबह उठो तो कुछ बोल रहा है, अगले दिन कुछ और. सो इट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ टर्मोइल. एंड दी साइबर क्रिमिनल्स दे लव टर्मोइल. इनको तो परफेक्ट स्टॉर्म मिल गया है. दूसरा क्या है, लड़ाइयाँ हो रही हैं. ईस्ट यूक्रेन, ऑप सिंदूर हमारा, मिडल ईस्ट क्राइसिस, अगेन देयर इज टर्मोइल. थर्ड इज इंटरनेशनल लॉज. I was a member of the UN group of government experts, which took 20 years to come out with 11 non-binding norms for responsible behavior by states in cyberspace. 20 साल लगे. वहाँ आप एक वर्ड बोलिए ट्रस्ट, तो चाइनीज़ खड़ा हो जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रस्ट, तो उस पर बहस शुरू हो जाती है. 20 years लगे, वो भी नॉन बाइंडिंग नॉर्म्स. तो लॉज तो कोई है ही नहीं. म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी आप ट्राई करिए. वो चेन्नई में सिटी यूनियन बैंक का दे लॉस्ट अबाउट 100+ करोड़. तो पूरा मतलब दिल्ली से आता है, फिर जज के पास जाओ, फिर ये करो पुलिस स्टेशन. इट टुक अबाउट 120 days एंड वी न्यू वेयर द मनी हैड गॉन. दुबई में गया था, तो वहाँ जब हम पहुँचे तो कहते हैं सर सॉरी 90 days इज द मैक्सिमम लिमिट. 91st day ही हैड टेकन आउट द मनी. सो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी में प्रॉब्लम्स हैं, वेरी टाइम कंज्यूमिंग. लेटर्स रोगेटरी भी है, वो भी काम नहीं करता है. तो इंटरनेशनल लॉज नहीं है. जियो पॉलिटिक्स, टर्मोइल, लैक ऑफ एट्रीब्यूशन, इंटरनेशनल लॉज. अब आगे डार्क वेब. जो इंटरनेट में आप लोग मैसेजेस एक दूसरे को भेजते हैं और ये गूगल वी चैट वगैरह है, दैट इज़ ओनली 5% ऑफ द टोटल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर. 95% इज बिलो द सरफेस, दैट इज द डार्क वेब एंड द डीप वेब. वहाँ पे एनीथिंग रॉन्ग दैट यू कैन थिंक ऑफ एंड यू कांट इवन थिंक ऑफ ऑल्सो, क्योंकि हम लोग तो अच्छे सिटीजन हैं. एवरीथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग देयर. आपको किसी को मरवाना है, आप चाहिए वहाँ पे. यू वांट टू बाय AK-47, यू कैन गेट इट. क्रेडिट कार्ड चाहिए आपको, डेबिट कार्ड चाहिए, पॉर्न, एवरीथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग. एंड दैट इज एनोनिमाइज्ड. जो सरफेस वेब है जिसमें हम लोग और आप एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन, उसमें हर एक चीज़ इंडेक्स्ड होती है. एवरीथिंग इज ट्रेस्ड. तो व्हेन यू डू गूगल सर्च, उसको पता है कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेनी है और आपको बता देता है वो. बट इन द डार्क एंड डीप वेब इट इज़ एनोनिमाइज्ड. जानबूझ के वहाँ आपको पता नहीं कौन क्या पूछ रहा है, क्या मांग रहा है. आपके घर में होम डिलीवरी हो रही है ड्रग्स की. द रीज़न फॉर दैट इज दिस एनोनिमाइज्ड. उनका सिस्टम ही अलग है, कुछ अलग अलग नोड्स बना रखे हैं उसमें. So this is why cyber crime is taking place. Lack of attribution and all these things, right? So, as I said, resilience is going to be very important. And as far as now we are concerned, and this topic of public-private partnership, this is very important. In fact, I am chairman of Cyber Security Association of India. हमारे president और director general भी यहाँ बैठे हैं. And one of the reasons we created the CSI was when I was in the chair in NSCS,
आई फाउंड कि साइबर सिक्योरिटी में किससे बात करूँ मैं प्राइवेट सेक्टर में. आई मीन द क्लोजेस्ट आई फाउंड वाज डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया. बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग. CII का एक सेल है छोटा सा. PhD का भी एक दो सेमिनार्स करते रहते हैं ये लोग. So there was no association. Everyone has an association today. ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, डॉक्टर्स का है, डेंटिस्ट का है, सबका है. तो ऐसे साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री तो अभी इंडिया में काफ़ी हो गई है. ये भी कंपनी के बैठे हैं, पैराडाइम IT कंपनी साइबर सिक्योरिटी वाले हैं. एक मैनेज इंजन करके है, जोहो ने बनाया है. और मैं एक एडवाइज़र हूँ एक और कंपनी का, ग्रेमैक्स करके, GMR ग्रुप की. बहुत कंपनीज हो गई हैं साइबर सिक्योरिटी, बट उनका एसोसिएशन कहाँ है? सो द मोमेंट आई केम आउट, वी क्रिएटेड दिस ऑर्गेनाइजेशन. पहले से बना हुआ था, हम लोगों ने थोड़ी और स्ट्रेंथ दे दी है उसको, और अब हम अवेयरनेस कर रहे हैं. वी हैव गॉट गवर्नमेंट पीपल विद अस, वी गॉट एकेडमिया, वी गॉट इंडस्ट्री, एंड व्हेन वी नाउ प्रिपेयर अ पेपर एंड प्रेजेंट इट टू द गवर्नमेंट, अब लोग सुनने लग गए. सो दैट इज, आई थॉट आई जस्ट एक्सप्लेन कि PPP इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई विल गो ओवर द स्लाइड्स कि हमारा प्रेजेंट साइबर सिक्योरिटी सिस्टम, ये सर्ट की वो ली हुई है, उसमें फिगर्स जो लिए हैं, 20 लाख केसेस वर रिपोर्टेड लास्ट ईयर साइबर इंसिडेंट. और साइबर क्राइम जो यहाँ होता है, देर आर अबाउट 6,500 पीपल लूजिंग मनी एवरी डे हु आर रिपोर्टिंग टू cybercrime.gov.in, या 1930 वाला जो हेल्पलाइन. 6,500 तो ऑफिशियल फिगर है, एक्चुअल इज मच मोर, जिनको पता ही नहीं कि मतलब कहाँ रिपोर्ट करना है, क्या है. वेरी वेरी सीरियस इशू. Cyber crime also, and the number of cyber incidents that are taking place. And everything is being I did the inquiry for the AIMS case also. Hospital sector तो बहुत ही है, because उनको पता है कि कौन एकदम से क्राइसिस में आ जाएगा. वहाँ हो रही है सर्जरी किसी के ICU में, आपने वो कर दिया साइबर अटैक, दे विल पे इमीडिएटली, राइट. सो दे नो, बैंक्स, पूरी रेपुटेशन का लॉस है बैंक्स में. सो हॉस्पिटल, बैंक्स, हेल्थ केयर एंड ऑल, दीज आर दी प्राइम टारगेट्स. सो and I have mentioned this, the technologies that are being adopted, and what have we done as a nation? 27th September last year, Government of India का एक notification आया था, जिसमें allocation of business rules define किए थे. उसमें बोला गया था कि incident response will be the responsibility of Ministry of Electronics and IT, because CERT-in जो हमारी National Computer Emergency Response Team है, that is under MITI. So incident response is the responsibility of MITI. Network security is the responsibility of Department of Telecom, because they are the licensor, and the licensee agreement उनका telecom service providers के साथ होता है, तो they are responsible for network security. The responsibility of cyber crime is with the Ministry of Home Affairs, because they have the Indian Cybercrime Coordination Center. The excellent IPS officer Shri Rajesh Kumar is leading that with his 7 verticals. And they have regional cybercrime coordination centers, करीब 9 स्टेट में establish हो गया है. And then every district has a cybercrime cell. So एक उनका organization धीरे धीरे वो बनता जा रहा है. This is again a very important police job that is taking place. And the final coordination amongst all these and the strategic cyber security is the responsibility of the National Security Council Secretariat, where I was there. So coordination amongst all these different agencies and the strategic coordination. So this is our structure. Let me come to the next slide. Now, what are the problems? Because I have been asked to speak, so I must say that with the present concept that I just mentioned, problems क्या हैं कि government agencies and private companies often operate in isolation. Let me take out my slides I've got here also. Yeah. So, is DG NCIPC here or not? Or has he left, Naveen? Okay, because I don't want to offend him. He does a very good job of handling the critical sector. Government of India has defined 7 critical sectors, which include power, telecom, energy sector, transportation sector, health sector, and BFSI and the government sector. तो ये 7 sectors जो हैं, ये Government of India ने बोला है, ये critical sectors हैं.
बिकॉज इफ एवरीथिंग इज क्रिटिकल देन नथिंग इज क्रिटिकल. सो दीज 7 सेक्टर्स में तो हमने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया है विच इज़ हेडेड बाय श्री नवीन कुमार सिंह, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर. तो ही डज अ गुड जॉब with these 7 sectors. But then what about the others? आजकल, is there any sector which is not critical? You tell me. Take education sector for example. आपका नेशन वाइड जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, वो किसी ने कर दिया डिसरप्ट डीडोस अटैक से, वो हल्ला मच जाएगा. वाटर, देयर हैव बीन केसेस ऑफ वाटर पॉइजनिंग यूएसए में. एवरी सेक्टर टुडे बिकॉज ऑफ द ऑटोमेशन. अभी सब लोग ने टेक्नोलॉजी यूज़ कर ली है. जहाँ आपने टेक्नोलॉजी यूज़ करी आपका थ्रेट सर्विस बढ़ गया. So every sector is critical. So the first point that I'm saying is that what about the other sectors? Who is handling the cyber security of that? Who's for the health sector? There is not even a regulator also. Most important sector, right? So there is no consistent institutional platform for real-time threat intelligence. Who is going to give that threat intelligence to now the private sector? The threat intelligence that I mentioned is so important for your protection. उनको कौन देगा? There is a CISO network, I know. CERT-IN का एक CISO is Chief Information Security Officer. He is connected to about 700 CISOs of the industry. So वो उसको जो मिलता है बाहर से वो he does push it out. Sometimes on email and sometimes on a format which is called STIX format. वो directly उसके system में ingest हो जाता है. तो वो कर रहे हैं, लेकिन 700 ही हमारी industry है क्या? I mean, there are many, much more. So a lot of effort has to be done. Then cyber security standards. Very widely across sectors. We currently have a shortage of 1 million trained cyber security professionals. 1 million. So this is a very important aspect. Cyber की आपकी जो skill councils बनी है उसमें cyber security की skill council नहीं है. तो कहाँ से उनको training हो रही है? Skilling कहाँ हो रही है उसकी? And although laws like the DPDP Act have been passed, their enforcement remains weak. So this is a problem for all laws. I can't speak to police people about enforcement of laws. Okay. So government agencies and private companies often operate in isolation. This is what I told you. The starting point of हम लोगों का association बनाने का यही है कि मतलब every man for himself हो रहा है, every industry for himself. कोई ऐसा coordination नहीं है. So there is no consistent institutional platform. Standards का मैंने बताया. अच्छा ये this. तो यूएस बाकी लोग क्या कर रहे हैं? यूएस में सीसा जो है उनकी साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी, दैट क्लोजली डील्स विद प्राइवेट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स टू सेफगार्ड नेशनल इंटरेस्ट. और उनके सेक्टर्स करीब 16 हैं, 16 सेक्टर्स उन्होंने बनाए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है. दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट हैज सेड वाटर एंड ऑल. यूके में जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर वहाँ मैं गया हूँ, दैट हैज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. एक उन्होंने इकोसिस्टम बनाया है कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर में कोई सर्व कर रहा है, उसके बाद वो ब्रिटिश टेलीकॉम में जाके नौकरी करने लग जाता है साइबर सिक्योरिटी में ही. फिर उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में चला जाता है, कैम्ब्रिज में साइबर सिक्योरिटी पढ़ा रहा है. फिर उसके बाद वो उनकी डिफेंस सर्विसेज में कॉन्ट्रैक्टर जो लेते हैं बाहर से, वहाँ चले जाता है. सो दे हैव क्रिएटेड अ इकोसिस्टम वेयर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स कैन रोटेट इन डिफरेंट सेक्टर्स एंड शेयर नॉलेज एंड थिंग लाइक दैट. सो दिस इज सम एग्जाम्पल्स दैट different countries are following. Okay. So what am I proposing? I have got 10 points, which I do not know if you make a report in the seminar or not, but it will be good if, from the side of your organization also, we can collaborate with you, that report can be sent. तो एक तो ये है कि sectoral cyber security councils होनी चाहिए. Why sectoral? Let's take power sector. Now power sector का every sector has a different concept. उनका क्या है? ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रिड ऑपरेशंस, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. जो उसमें इक्विपमेंट लगता है, स्काडा सिस्टम्स होते हैं. स्काडा है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन. उसमें PLCs लगते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स, और ट्रांसमिशन लाइन. तो उनका हाउ टू प्रोटेक्ट दैट सिस्टम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर. बैंकिंग में आपका कोर बैंकिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है. टेलीकॉम में कुछ अलग ही है उनका, 5G कैसे प्रोटेक्ट करना है. सो सेक्टर skill, I'm not saying skill council, but cyber security councils have to be there where private sector is there और गवर्नमेंट का रेगुलेटर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए नेशनल लेवल पे
where, we can exchange information, we can exchange threat intelligence, we can exchange all the standards क्या क्या हैं अलग अलग तरह के कोई तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए where I can go to and the private sector और उसके साथ काम. Then is develop cyber security clusters and innovation zone. तो once I had gone to Israel, वहाँ इसराइल में एक जगह है बीर शिवा नाम है उसका, where they have created a cyber spark बोलते हैं उसको. So innovation, cyber security innovation center is there. Israeli defense forces are there. Ben Gurion University is there. एक वो मेट्रो स्टेशन भी है वहाँ पे. मतलब जितने स्टेक होल्डर्स हैं साइबर सिक्योरिटी के, एवरीबॉडी इज देयर फिजिकली इन वन जियोग्राफिकल एरिया. जैसे हमारे यहाँ नोएडा में भी somebody is trying to make a cluster like that. So if you have a problem, आप वहाँ जाइए उनके साइबर सिक्योरिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, तो वो फट से मॉडल बना देते हैं कि अच्छा ये करते हैं वो करते हैं, उसको वहाँ टेस्ट कर लो, एकेडेमिया से कंफर्म करा लो कि ये वर्केबल है कि नहीं. सो दिस इज हाउ इनोवेशन टेक्स प्लेस. सो दीज क्लस्टर्स इफ वी कैन मेक, आई थिंक इट मे गिव द रिजल्ट. Then frequent stakeholder meetings. This is of course normal this thing. Launch joint skilling and certification programs. Cyber security. अलग-अलग private लोगों ने बना रखे हैं अपने क्या standard है उनका. There are some CISSP and information security professional अलग-अलग standards हैं, but they are all foreign. हमें अपना अगर बना लें अपने standards, I think it's a good idea. Enable direct ingestion of threat intelligence. स्टिक्स फॉर्मेट दैट आई मेंशन, जिसमें स्टिक्स और एक दूसरा है टैक्सी फॉर्मेट होता है. उसमें अगर आप भेजें थ्रेड इंटेलिजेंस, वो डायरेक्टली सिस्टम में इंजेस्ट हो जाती है. इंस्टेड ऑफ अगर ईमेल आई फिर उसको कॉपी करो फिर अपने सिस्टम में पेस्ट करो, इंस्टेड ऑफ दैट आई थिंक दिस इज अ बेटर आइडिया. देन ऑफ कोर्स रिस्पॉन्स RVDP प्रोग्राम. सो आई फाइंड हमारे देश में बहुत सारे देशभक्त हैं जो कि फ़ौज में नहीं है, IPS में नहीं है, बट देश के लिए करना चाहते हैं. सो ये DG NCIPC बड़ा अच्छा प्रोग्राम एक करते हैं RVDP का, जिसमें कोई भी, और नॉर्मली ये लोग बड़े यंग लोग इसमें रिस्पॉन्ड करते हैं कि आपको कहीं भी कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है सॉफ्टवेयर में, जो मैं बता रहा था, तो ये लोग बड़े स्मार्ट हैं, अपने देखते रहते हैं. अच्छा ये प्रोग्रामिंग भी पता है इनको, तो जहाँ इनको मिलती है तो ये यहाँ आके रिपोर्ट करते हैं कि ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर में ये करो तो ये हो जाता है. तो वो फिर करेक्ट भी करते हैं उसको. एंड बाद में एक एनुअल हम लोग फंक्शन करते थे जिसमें हम उनको अवार्ड भी देते थे, कहीं कहीं पैसे भी देते हैं. पैसे तो वैसे सिविल में अगर आप गूगल के प्लेटफॉर्म में वल्नरेबिलिटी ढूंढ लें आपको $1 million मिलेंगे, एटलीस्ट $1 million, इफ़ यू फाइंड अ वल्नरेबिलिटी इन दीज बिग प्लेटफॉर्म्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड ऑल दैट. सो RVDP इज अगेन वन ऑफ दिस इश्यूज. देन कंडक्ट साइबर हाइजीन कैंपेन फॉर सिटीजन्स, जो वो बता रहे थे सोसाइटी वाला, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट हैज़ टू बी समथिंग लाइक वो जो 2 बूंद पोलियो वाली जो होती थी, एवरी संडे अमिताभ बच्चन आ रहा है, ये आ रहा है. सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस वी हैव टू गिव. इतने लोगों का पैसा जा रहा है. आई एम टेलिंग यू, एवरी डे आई गेट अबाउट 8 to 10 कॉल्स ऑफ पेंशनर्स और एजेड लोग, और नॉर्मली सैटरडे वो करते हैं, उनको पता है बैंक की हेल्पलाइन भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, और एजेड लोग डर भी जाते हैं बड़ी जल्दी. सो दे आर नॉट हैकिंग द सिस्टम नाउ, दे आर हैकिंग द ब्रेन. वो आपका दिमाग हैक कर रहे हैं डरा के. ठीक है. Okay, and I think the last few points are leverage industry associations that I just mentioned, and of course revive the national cyber response. एक पहले एक incident response framework होता था where everyone could exchange information and all stakeholders, something like what I mentioned earlier. So these were some of the issues I thought that we could examine and for the public-private partnership. To conclude again, remember what the reasons that I mentioned कि resilience जो है, we have to expect कि ये cyber attacks हमारे ऊपर आते रहेंगे. That is it's a given कि this is, you have to be prepared. आपके मोबाइल फ़ोन में भी, आपके कंप्यूटर में भी आते रहेंगे. It's not a question of if you are hacked, it's whether you know it or not. तो अगर ये सिचुएशन है तो हमें क्या प्रिवेंशन के लिए करना है, वो जो 4 शब्द मैंने बोले थे, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड कोऑपरेशन एट ऑल लेवल्स. सो विद दैट आई विश यू अ साइबर सेफ लाइफ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑनर. जय हिंद.